میں پاسٹر فہد اردو سہار چرچ کو اور اپنے تمام سائمین کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں. خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے, اس وقت کے لیے جس نے ہماری زندگی میں عطا کیا, تاکہ ہم سب باہم مل کر خداوند کے کلام کی عمیق باتوں کی طرف مل کر قدم بڑھائیں اور اپنے خداوند میں پیوستہ ہوتے چلے جائیں. آمین. جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا, یہ ذکر کیا کہ اٹس اے کرسمس سیزن, اور کرسمس سیزن میں ہم نے ایک سرمن سیریز کا آغاز کیا ہے. پچھلے سیشن میں ہم نے کرسمس سے جڑے ہوئے ایک ایسے ہی کردار جس کا نام یوسف ہے, یوسف سے ملاقات کی کہ کیوں خداوند کو وہ شخص پسند تھا, وہ کون سی ایسی کوالٹیز تھیں, وہ کون سی ایسی خوبیاں تھیں جس کے سبب سے یوسف خداوند کو عزیز تھا, اور ہی واز دا چوزن ون, اس کا انتخاب کیا گیا کہ اس شخص کی سرپرستی میں آسمانی باپ کا بیٹے یسوع جو ہے وہ پرورش پائے. ویسے ہی ہم اپنی اسی سرمن سیریز کو کنٹینیو رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے, اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور 25 آیت سے لے کر 30 آیت تک. لوکا کی انجیل 2 باب 25 آیت سے 30 آیت تک ہم ایک اور کردار سے ملاقات کریں گے, ایک اور کریکٹر سے ملیں گے جس کا ذکر ہمیں ان آیات میں ملتا ہے. 25 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور دیکھو یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا, اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا, اور روح القدس اس پر تھا, اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا. وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا, اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں, تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک, اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے مطابق سلامتی سے رخصت کرتا ہے, کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو. آمین. عزیزو, اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھے, میں چاہتا ہوں کہ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خداوند کی آواز سننے کے لیے تیار کریں. زندہ مہربان آسمانی باپ یسوع جی, ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت, اس موقع کے لیے, اس پل کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں عطا کیا. خداوند ہم آپ کے تخت کے سامنے سرنگو ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع جی آپ کے مذبح پہ لاتے ہیں. ہم منت کرتے ہیں کہ اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند تمام جانیں جو اس آواز کو سنتی ہیں بڑی تقویت دیجیے, اپنے بچوں کو چھوئیے, بلیس کیجیے, برکت دیجیے. خداوند یہ کرسمس سیزن خداوند تمام زندگیوں میں جو اس آواز کو سنتی ہے, اس کلام کو رسیو کرتی ہے, یہ سیزن بابرکت سیزن ٹھہرے. سوچیں بدلے, دل بدلے, حالات بدلے. خداوند اپنے بچوں کو چھوئیے اور اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی تقویت دیجیے. خداوند یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں, آمین. جب ہم اس پیسج کو پڑھتے ہیں, نہ صرف اس پیسج کو بلکہ جب ہم ساری کرسمس سٹوری کی سٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مختلف کریکٹرز آتے ہیں. کچھ کریکٹرز ایسے ہیں جو بڑے پرومیننٹ ہیں, اور کچھ کریکٹرز ہیں جو ہڈن ہیں. مطلب وہ خداوند کے پلان میں تو تھے, خداوند نے ان کے ساتھ وعدے تو کیے تھے, لیکن شاید ان کا ذکر کرسمس سٹوری کو لے کے بہت کم کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن شاید انسان کے لیے انتظار کرنا بڑا مشکل ہے. اور جیسے کہ اس سرمن کا ٹائٹل ہی ڈیوائن ڈیلے, مطلب ایسا کام جس میں خداوند کی طرف سے ہی کچھ وقت لگا. انسان کے لیے انتظار کرنا سب سے مشکل ہے, اور اگر کسی کام میں ڈیلے ہوتا جائے یا کسی کام کو پورا ہونے میں وقت درکار ہو تو بعض اوقات خدشات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں, شک و شبہات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں, اور ایسے احساسات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں something is wrong, شاید کہیں نہ کہیں کچھ غلطی ہے, کچھ مسٹیک ہے. ہم جب اس پیسج کے اندر اس کردار سے ملاقات کرتے ہیں جس کا نام شمعون ہے, خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے سے خداوند کے ٹھہرائے ہوئے وقت کا منتظر تھا. He was waiting for God. ملیے شمعون سے اور اس سے بات کیجئے, اس سے پوچھئے کہ کیوں کر شمعون
इस कदर इत्मीनान से खुदावंद का इतना लंबा इंतजार कर सकता है। खुदावंद को ये शख्स निहायत अजीज था, ये शख्स खुदावंद के दिल के करीब था। ये शख्स शमाउन जो एक लंबे अरसे से खुदावंद का मुंतजर था, खुदावंद के वादे का इंतजार कर रहा था। शमाउन से मिलकर यह पता चलता है कि यह ऐसा शख्स था जो खुदावंद के काम करने के अंदाज से अच्छी तरह वाकिफ था। He knows, अरे वो अच्छी तरह जानता था कि खुदावंद किस तरह से काम करता है। अगर आप भी खुदावंद के काम करने के अंदाज को समझना चाहते तो रीड योर बाइबल। अरे देखिए, खुदावंद ने यूसुफ से वादा किया कि वो उसको हुक्मरानी अता करेगा, सरफराजी बख्शेगा, लेकिन मिस्र का मिनिस्टर बनने तक यूसुफ को एक लंबा इंतजार करना पड़ा। इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। इब्राहिम के साथ खुदावंद ने वादा किया कि उसकी नस्ल जो है वादे की सरजमीन में दाखिल होगी और खुदावंद की बरकत और नेमतों को हासिल करेगी, लेकिन ये 1-2 दिन या 10 दिन की बात नहीं थी। इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबा अरसा दरकार था। पैदाइश की किताब में खुदावंद का यह वादा था कि वो औरत की नस्ल से एक शख्स को भेजेगा, अरे जिसके वसीले नजात आएगी। और फिर नए अहदनामे में मसीह यीशु की पैदाइश होती हुई नजर आती है। इट वाज अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस, अरे ये एक लंबा अरसा दरकार था इसमें। लेकिन वो लोग जो खुदावंद के अंदाज से वाकिफ है, वो इत्मीनान में रहकर खुदावंद के वादों का इंतजार करते हैं। जैसे शमाउन एक ऐसा शख्स था जो खुदावंद के काम करने के अंदाज से बखूबी वाकिफ था, और खुदावंद उन लोगों पर जो खुदावंद के दिल के करीब होते, जो खुदावंद को अजीज होते हैं, खुदावंद उन पर अपने भेदों को, अपनी बातों को जाहिर कर देता है। मैं जब इस शख्स से मिलता हूं तो इसके किरदार से जुड़ी 3 ऐसी बातें, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट राइचियस, दूसरा पॉइंट रेवलेशन, और तीसरा पॉइंट रिवॉर्ड। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे राइचियस। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि शमाउन रास्तबाज था, शमाउन खुदा तरस था, और शमाउन इस्राएल की सलामती का मुंतजर था। ही वॉज अ पीस लवर मैन। ये रास्तबाज शख्स था, ये खुदा तरस था, और ये इस्राएल कौम की सलामती का मुंतजर था। मतलब खुदावंद ने हमारे सामने जो शमाउन का सीवी रखा, उस सीवी के अंदर सिर्फ यही 3 बातें लिखी हुई है शमाउन के बारे में। He was a righteous man, अरे वो रास्तबाज शख्स था, वो खुदा तरस शख्स था, और वो इस्राएल की सलामती का मुंतजर था। He was a peace lover man, अरे वो खुदावंद का इंतजार कर रहा था। शमाउन की फैमिली कहां थी, ये किस खानदान और किस कबीले से बिलोंग रखता है, हम ये नहीं जानते। इसकी बीवी, इसके बच्चे कहां और कितने हैं, हम ये भी नहीं जानते। और जब हमारी मुलाकात शमाउन से होती है, ही इज ओल्ड मैन, और खुदावंद हमें यह बताता है कि ये रास्तबाज शख्स है, ये खुदा तरस शख्स है, और ये इस्राएल की सलामती का मुंतजर है। ये शमाउन के किरदार की वो खूबियां थी जिसने शमाउन को खुदावंद के साथ एक गहरे रिश्ते में जोड़ दिया। मतलब खुदावंद के नजदीक ये मायने नहीं रखता कि शमाउन का स्टेटस क्या है, अरे ये किस खानदान से बिलोंग करता है, इसकी पोजीशन क्या है, इसका बैंक बैलेंस क्या है, इसके पास कौन कौन सी डिग्री है। अरे खुदावंद के साथ शमाउन को जो चीज मजबूत रिश्ते में जोड़ती है, वो शमाउन की रास्तबाजी थी, वो शमाउन की खुदा तरसी थी, और वो शमाउन के दिल में अपनी कौम को लेकर बोझ था और तरस था। अरे आपके लिए भी मैसेज ये है, आपके पास खा कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, अरे आपके पास खा कितने भी डिप्लोमास क्यों ना हो, अरे आपका कोई भी स्टेटस क्यों ना हो, आपके बैंक अकाउंट में कितने भी पैसे क्यों ना हो, कितनी भी गाड़ियां, कितने भी बंगले क्यों ना हो, लेकिन ये दुनियावी स्टेटस आपको खुदावंद के साथ मजबूत रिश्ते में जोड़ नहीं सकता। हाँ, अगर कोई बात आपको खुदावंद में व्यवस्था कर सकती है, मजबूत कर सकती है, खुदा तरसी और खुदावंद के खौफ में रहकर जिंदगी गुजारना है। खुदावंद का कलाम बताता कि
साइमन सिमियन was a righteous person, ये रास्तबाज था, ये खुदा तरस था, और ये सलामती का, मखलसी का, रिहाई का, मसीहा की आमद का मुंतजर था। हम जब क्रिसमस के सारे इवेंट्स पे गौर करते हैं, शमाउन एक ऐसा किरदार है जिसका जिक्र हमारे ड्रामास में भी नहीं है। शमाउन का किरदार और इसका जिक्र हमारे कैरल सिंगिंग्स में भी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद अगरचे इंसान ने याद नहीं रखा, हाँ मगर खुदावंद ने शमाउन को याद रखा, क्योंकि शमाउन खुदावंद के दिल के करीब था और शमाउन खुदावंद के वादों का मुंतज़िर था। ये खुदा तरस शख्स था, ये दुआ करने वाला, ये पाक कलाम का मुतालिया करने वाला, हर रोज खुदावंद के कलाम की जुगाली करने वाला शख्स था। और वो जो खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते हैं, अरे वो लोग खुदावंद के काम करने के अंदाज से बखूबी वाकिफ होते हैं। यही सबब था क्योंकि शमाउन वाज अ बाइबल रीडर, अरे ये पाक कलाम का हर रोज बाकायदगी से मुतालिया करने वाला शख्स था, इसलिए ये अच्छी तरह जानता था कि खुदावंद के काम करने का अंदाज क्या है। शमाउन अच्छी तरह जानता था कि ईसाया 40 बाब में लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो खुदावंद का इंतजार करते हैं क्योंकि वो जोर हासिल करेंगे। शमाउन अच्छी तरह जानता था कि ज़बूर 130 में लिखा हुआ है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद की मुंतज़र रह, तू खुदावंद के कलाम पर एतमाद रख। ये पाक कलाम का मुतालिया करने वाला शख्स था और खुदावंद का कलाम इसको हर रोज तसल्ली देता, और इसी तसल्ली के सबब से ये खुदावंद के कलाम पर यकीन रखता, एतमाद रखता, जिसके सबब से ये बड़े इत्मीनान से खुदावंद के वादों का मुंतज़र था, क्योंकि ये अच्छी तरह जानता था कि खुदावंद किस तरह से काम करता है। शमाउन फेडअप नहीं हुआ, ये इरिटेट नहीं हुआ, बल्कि रोज बरोज जब जब ये पाक कलाम का मुतालिया करता, दुआ में झुकता, हर रोज ये इनकरेज होता और मोटिवेट होता कि खुदावंद का कलाम जो है वो मजबूत करता है, खुदावंद का कलाम जो है वो कायम रखता है। और शमाउन की तरफ से आज मेरे लिए और आपके लिए भी यही मैसेज है। शायद आप दुआ करने वाले हो, शायद आप हर फेलोशिप को अटेंड करने वाले हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दिल में ऐसे ख्याल उठने शुरू हो जाए कि खुदावंद नहीं सुन रहा, अरे खुदावंद के हुजूर से जवाब नहीं आ रहा, तो आपके लिए मैसेज ये है, हो सकता है आप दुआ करने वाले, ये भी हो सकता है आप हर फेलोशिप का हिस्सा बनने वाले हो, लेकिन ये भी मुमकिन है यू आर नॉट अ बाइबल रीडर, क्योंकि वो लोग जो खुदावंद के कलाम का बाकायदगी से मुतालिया करते हैं, अरे वो खुदावंद से अच्छी तरह वाकिफ हैं। शमाउन रास्तबाज था, खुदा तरस था, दुआ करने वाला मर्द दुआ था, खुदावंद के कलाम का बारीकी से मुतालिया करने वाला, खुदावंद के अंदाज से, खुदावंद के काम, खुदावंद के वादों से अच्छी तरह वाकिफ था और खुदावंद के कलाम पर भरोसा था। अरे आपके लिए इस सीजन में मैसेज ये है, नाउ चेंज योर स्टाइल। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फेलोशिप का हिस्सा बन के रहने से काम नहीं चलेगा। स्टार्ट योर बाइबल स्टडीज, अरे कलाम का मुतालिया शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो लोग जो पाक कलाम का मुतालिया करते हैं, अरे वो खुदावंद में रोज बरोज पेवस्ता होते जाते, जड़ पकड़ते जाते और ईमान की मजबूती हासिल करते हैं। खाली दुआओं से ईमान मजबूत नहीं होते, पाक कलाम पढ़ना पड़ेगा। ईमान की मजबूती चाहिए, देन रीड योर बाइबल। अरे पाक कलाम का मुतालिया करने से ईमान को मजबूती मिलती है। शमाउन का ईमान खुदावंद के वादों पर इसलिए मजबूत था, कायम था, ही वॉज अ बाइबल रीडर। और आपके लिए मैसेज ये है इस सीजन में, स्टार्ट योर बाइबल रीडिंग। पहली बात थी राइचियस, दूसरी बात रेवलेशन। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, और यरूशलेम में शमाउन नामी एक आदमी था। इस बात पे गौर कीजिएगा, यरूशलेम में शमाउन नामी एक आदमी, ये कैसे मुमकिन है कि यरूशलेम में शमाउन नामी एक ही आदमी हो? इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। यरूशलेम में शमाउन नामी कई आदमी थे,
لیکن ان کئی آدمیوں میں اور اس شمعون میں فرق تھا، اور وہ فرق یہ تھا، خدا ان کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ روح القدس شمعون کے اوپر تھا۔ اس شہر کے اندر جو باقی شمعون تھے ان کے اوپر روح القدس نہیں تھا، لیکن یہ والا شمعون روح القدس سے بھرا ہوا تھا۔ پرانے عہد نامے میں پاک روح آتا تھا اور اپنا کام پورا کر کے چلا جاتا تھا، لیکن شمعون کے اوپر روح القدس تھا، پاک روح کی حضوری تھی۔ یہ شمعون اس شہر میں بسنے والے باقی شمعون سے مختلف تھا۔ He is a different، یہ پاک روح سے بھرا ہوا تھا، پاک روح کی معموری تھی جو اس کو دوسرے سیم ہم نام لوگوں سے منفرد اور الگ کرتی تھی، اور یہ خداوند کے دل کے قریب تھا۔ یہ شخص صرف راست باز نہیں، صرف خدا ترس نہیں، صرف سلامتی کا منتظر نہیں، خداوند کا کلام بتاتا ہے یہ روح القدس سے بھی بھرا ہوا تھا۔ He was in deep relation with God، یہ خداوند کے ساتھ ایک گہرے رشتے کے اندر تھا، اور خداوند نے شمعون کے اوپر اس مکاشفہ، اس بھید کو کھول دیا کہ جب تک تو مسیحا کا دیدار نہ حاصل کر لے تو اس جہان سے رخصت نہیں ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شمعون کے ساتھ یہ وعدہ عمر کے کس حصے میں خداوند نے کیا۔ اگر تو شمعون نے خداوند سے یہ وعدہ جوانی میں لیا then it's a long time، ایک لمبے عرصے سے شمعون خداوند کے وعدے کی تکمیل کا منتظر تھا۔ اگر جوانی میں خداوند نے شمعون سے یہ وعدہ کر دیا کہ جب تک تو مسیحا کا دیدار نہ حاصل کر لے تو اس جہان فانی سے رخصت نہیں ہو سکتا، اس وقت سے لے کر اب تک شمعون جو تھا خداوند کے وعدے کا منتظر تھا، اور یہ مسلسل خداوند کا انتظار کر رہا۔ خداوند نے اس کے اوپر اس بھید، اس مکاشفے کو کھول دیا۔ آپ غور کیجئے اس بات پر، خداوند یسوع مسیح کی بابت ہر شخص کے پاس خداوند نے فرشتوں کی معرفت پیغام بھیجے، گدریوں کے پاس فرشتے کو بھیجا، یوسف کو خواب میں فرشتہ دکھائی دے رہا، مریم کے پاس بھی فرشتہ بھیج دیا، لیکن جب شمعون کی باری آئی تو شمعون کے پاس نہ تو خداوند نے کسی فرشتے کو بھیجا اور نہ خداوند نے کسی ستارے کو بھیجا، بلکہ شمعون کو یہ خوشی کی خبر دینے کے لیے خود خداوند آیا اور خود خداوند نے شمعون سے کلام کیا۔ ہاللیلویہ۔ ہماری فیملی کے اندر جب کوئی پروگرامز ہوتے ہیں تو انویٹیشن کارڈز ہم اپنے بچوں کے ہاتھ یا اور عزیزوں کے ہاتھ رشتہ داروں تک پہنچا دیتے ہیں کہ بھئی یہ دعوت نامہ انہیں دے دیجئے گا تاکہ وہ عین وقت پہ دعوت میں شریک ہو سکے اور ہماری خوشی میں شامل ہو اور ہم سب لطف اندوز ہو سکیں۔ لیکن فیملی کے اندر وہ لوگ جو دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، بڑے خاص الخاص ہوتے ہیں، گھر کے بڑے بزرگ ان کو دعوت نامہ کسی کے ہاتھ نہیں بھیجتے بلکہ خود ارادہ کرتے ہیں کہ یہ وزٹنگ کارڈ، یہ انویٹیشن کارڈ جو ہے یہ ہم خود لے کے ان کے پاس جائیں گے اور انہیں انوائٹ کریں گے۔ یہاں پر بھی ماجرا کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ خداوند نے ہر کسی کے پاس فرشتوں کے ہاتھ پیغام بھیجا، لیکن جب شمعون کو دعوت نامہ دینے کی باری آئی تو خداوند نے فرشتوں کو روک دیا اور آپ خداوند شمعون کے پاس آیا اور اس کو یہ خوشی کی خبر بتائی کہ جب تک تو مسیحا کا دیدار نہ حاصل کر لے تو اس جہان فانی سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ شمعون خداوند کے کس قدر دل کے قریب تھا۔ ہاللیلویہ۔ ارے شمعون کے اوپر خداوند نے اس بھید کو کھول دیا۔ ارے وہ لوگ جو وفاداری سے اور مستقل مزاجی سے خداوند کے حضور میں جھکے رہتے ہیں وہ خداوند کے دل کے قریب ہوتے ہیں، اور وہ جو خداوند کے دل کے قریب ہوتے ہیں خداوند اپنے بچوں پر اپنے باتوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے منصوبوں کو آشکار کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ غور کیجئے گا اس بات پہ، شمعون بھی خداوند یسوع مسیح کا منتظر تھا کہ مسیحا آنے والا ہے۔ مسیحا کی پیدائش کی بابت شمعون بھی جاننا چاہتا تھا۔ بنی اسرائیل قوم اس کی منتظر تھی۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو لے کے لوگ طرح طرح کی ایکسپلینیشنز دیتے تھے، لوگوں کے پاس مختلف آئیڈیاز تھے، مختلف تھیوریز تھی۔ شمعون کے پاس بھی خداوند کی طرف سے ایک میسج تھا، لیکن شمعون نے خداوند کی آواز کو سن کر اس میسج کو اپنے دل میں رکھا۔
शमौन खुदावंद के घर में हर रोज विजिट करता था। लोगों के आइडियाज क्या है, लोगों की थ्योरीज क्या है, लोगों की एक्सप्लेनेशन क्या है, ये शमौन तक भी बातें पहुंचती थी, लेकिन वो कभी भी किसी की महफिल में इन्वॉल्व नहीं हुआ। शमौन ने कभी भी अपनी राय का इजहार नहीं किया, क्योंकि शमौन जो कि मर्दे दुआ था, मर्दे खुदा था और पाक कलाम का गहरे तौर पर मुतालिया करने वाला शख्स था। शमौन खुदावंद के भेदों से अच्छी तरह वाकिफ था। ये थ्योरीज, ये आइडियाज शमौन के दिल को डगमगा नहीं सकते थे। अरे वैसे ही आज आपके लिए और मेरे लिए भी मैसेज है। जनाब मसीह की पैदाइश को लेकर आज भी लोगों के पास बथेरे आइडियाज हैं, आज भी लोगों के पास बड़ी एक्सप्लेनेशंस हैं, आज भी लोगों के पास बथेरी थ्योरीज हैं, लेकिन इन आइडियाज को लेके, इन एक्सप्लेनेशंस को लेके, इन थ्योरीज को लेके कहीं आपका दिल ना डगमगा जाए। अरे आप डिस्टर्ब और अपसेट और मायूस महसूस ना कीजिए, क्योंकि वो लोग जो खुद पाक कलाम का मुतालिया करते हैं, वो पाक कलाम की गहराइयों और सच्चाइयों से आश्कार होते हैं। क्योंकि खुदावंद का रूह आप उनके दिल की आंखों को रोशन करता और सच्चाई से आशना कराता है। हालेलुया। पहली बात थी राइचियस, दूसरी बात रेवलेशन और तीसरी और आखिरी बात रिवॉर्ड। खुदावंद की तरफ से शमौन के लिए ये रिवॉर्ड था। इट वॉज अ गिफ्ट। ये लंबी उम्र जो शमौन ने रोए जमीन पर पाई, अरे ये खुदावंद की तरफ से एक रिवॉर्ड था। ये शमौन के ऊपर फजल हुआ खुदावंद की तरफ से। खुदावंद ने अपने बंदे शमौन से वादा किया कि जब तक तू मसीहा का दीदार ना हासिल कर ले, अरे तो इस जहान से रुखसत नहीं होगा। और खुदावंद ने यह वादा करके खामोश नहीं बैठा, बल्कि खुदावंद मुसलसल इस वादे की तकमील के लिए बैक स्टेज काम करता रहा। शमौन के साथ खुदावंद ने प्रॉमिस किया, यू विल सी द मसाया, रे तू मसीहा को देखेगा, तुझे उसका दीदार नसीब होगा। ये वादा करके खुदावंद खामोश न रहा, बल्कि बैक स्टेज मुसलसल काम करता रहा। खुदावंद ने मरियम नाम की एक लड़की को चुना, तो दूसरी तरफ खुदावंद ने यूसुफ नामी एक शख्स का चुनाव किया। फिर खुदावंद ने इनके रिश्ते में बंध जाने का इंतजाम किया। फिर एक तरफ खुदावंद ने अलिशबा के रहम को खोला, वो हामला हो गई। फिर उस पैगाम को फरिश्ते की मार्फत मरियम तक पहुंचाया, और जब मरियम ने इस मैसेज को रिसीव किया, उसको तकवीयत मिली, वो इनकरेज हुई। और जैसे ही उसने खुदावंद के मैसेज को रिसीव किया, मरियम भी रूह कुदस से हामला हो गई। हाकिम वक्त के हाकिमों को खुदावंद ने उभारा कि इस नवीसी की जाए। मरियम और यूसुफ के लिए अगरचे वो मुश्किल वक्त था, लेकिन मजबूरी उनको यरूशलेम आना पड़ा। उनके लिए सराय में जगह न थी। खुदावंद ने उनके लिए एक अस्तबल में इंतजाम कर दिया। खुदावंद ने जैसे बच्चे की पैदाइश हुई, फरिश्तों की मार्फत मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए। मजूसियों के पास सितारे को भेज दिया, गडरियों के पास फरिश्तों को भेज दिया। और जब मसीह यीशु की पैदाइश के बाद 40 दिन पूरे हुए, तो मरियम और यूसुफ हैकल के अंदर शरीयत के मुताबिक उस बच्चे को उसको ब्लेस करवाने के लिए, मखसूस करवाने के लिए जब हैकल में लेके आए, दैट इज द टाइम कि जब खुदावंद के रूह ने शमौन के दिल में इस बात की तहरीक की कि अब खुदावंद का वादा अपनी तकमील को पहुंचने वाला है। गेट रेडी, अरे आज के दिन तू मसीहा का दीदार हासिल करेगा। हालेलुया। मतलब शमौन से वादा करके खुदावंद खामोश नहीं था, बल्कि बैक स्टेज खुदावंद हालात को बदल रहा है, माहौल बना रहा है, सूरत हाल को बदला जा रहा है। हाकिम वक्त को खुदावंद ने अपने कंट्रोल में कर रखा था, सोचों को बदला जा रहा है, दिलों को बदला जा रहा है। खुदावंद वादा करके खामोश नहीं बैठता, बल्कि बैक स्टेज मुसलसल काम करता रहता है। अरे यही मैसेज है इस सीजन में आपके लिए भी और मेरे लिए भी। खुदावंद के हुजूर में दरख्वास्त रख के ये मत सोचिए कि इट्स टू लेट, अरे खुदावंद ने या तो हमारी दुआ सुनी नहीं, तो या उसका जवाब देना पसंद नहीं किया। शायद कहीं पर खुदावंद नाराज है। याद रखिए, खुदावंद नाराज नहीं है। अरे आपकी दुआ को उसने कबूल कर लिया, अब तो वो बैक स्टेज आपके लिए मुसलसल काम कर रहा है। अरे कहीं पर वो आपके लिए सोचों को बदल रहा है, कहीं पर वो आपके लिए किसी के दिल को बदल रहा है, कहीं पर वो आपके
किसी के लिए दरवाजों को खोल रहे, रास्तों को बहाल कर रहे, ताकि आपसे किया हुआ वादा तकमील को पहुंचे। खुदावंद ने आपके साथ वादा किया कि इस साल वो आपके लिए रास्तों को खोलेगा, दरवाजों को खोलेगा, वसीलों को मुहैया करेगा। डोंट थिंक कि खुदावंद ने आपकी आहो पुकार को सुना नहीं। ही लिसन, और उसने बैक स्टेज आपके लिए इंतजामात को तैयार कर रखा और मुसलसल आपके लिए काम करता जा रहा है। हालेलुया। अरे खुदावंद अपने बच्चों को दुआओं को सुन के खामोश नहीं बैठ जाता, बल्कि वो बैक स्टेज मुसलसल काम करता रहता है। कहीं वो सख्त दिलों को तोड़ रहा होता है, कहीं वो सख्त सोचों को तोड़ रहा होता है, कहीं वो माहौल बदल रहा होता है, कहीं वो दिलों के इरादे बदल रहा होता है। खुदावंद मुसलसल अपने लोगों के लिए बैक स्टेज काम करता है। आखिरी बात जब हम शमाउल से मुलाकात करते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है 29वीं आयत में, ऐ मालिक तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर। पीस। अरे शमाउल को जैसे ही मसीहा का दीदार हासिल हो गया, इत्मीनान मिल गया। शमाउल का दिल खुशी और शादमानी इत्मीनान से भर गया, क्योंकि वो लोग जो मसीहा का तजर्बा कर लेते, मसीहा का दीदार हासिल कर लेते, अरे वो इत्मीनान से, खुशी और शादमानी से सरशार हो जाते हैं। अगली बात यहां पे लिखी हुई है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली। शमाउल कहता है कि अपने कौल के मुआफिक मुझे रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात को देख लिया। शमाउल ने मसीह यीशु का दीदार हासिल कर लिया, और जैसे ही इसने मसीहा का दीदार हासिल कर लिया, नाउ ही इज रेडी टू लीव द वर्ल्ड। अरे अब वो खुशी से इस जहान से रुखसत होने के लिए तैयार है। ये मैसेज है हर एक ईमानदार के लिए, हर एक निजात याफ्ता शख्स के लिए। अरे मसीहा का दीदार हासिल हो जाए तो फिर खुशी से इस जहान फानी से रुखसत होने के लिए तैयार रहिए। जब तक मसीहा का दीदार हासिल ना हो, इस जहान फानी को रुखसत कह देना यह हमाकत होगी, बेवकूफी होगी। लेकिन जैसे ही मसीहा का दीदार हासिल हो जाता है, फिर इस दुनिया में दिल नहीं लगता। अरे फिर तो इस जहान फानी को अलविदा कहकर खुदावंद की हजूरी में हमेशा हमेशा के लिए जाने को दिल करता है। शमाउल की अब ख्वाहिश है बस, अरे अब तो मसीहा का दीदार हो गया, अब इस जहान फानी से मैं खुशी से कूच कर जाऊंगा। यही नारा हर एक ईमानदार का होना चाहिए। अरे ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद के मुंतजर थे। दे आर वेटिंग फॉर गॉड। ये मैसेज मेरे लिए और आपके लिए है कि आज भी खुदावंद के लोग मसीहा के मुंतजर हैं। लेकिन ये भेद शायद दुनिया से छुपा हो सकता है, खुदावंद के लोगों से नहीं। आप अंदाजा कीजिए, खुदावंद हैकल में आ गया, हैकल के अंदर और लोग भी मौजूद हैं, और वो लोग कुर्बानियां करने के लिए आए हैं। बस पे कुर्बानियां हो रही हैं, अपनी रूटीन में दुआएं हो रही हैं, कोई गीत गा रहा, कोई शुक्रगुजारियां कर रहा है। खुदावंद हैकल से आया, किसी को पता ही कोई नहीं। लेकिन वो जो खुदावंद के दिल के अजीज है, अरे वो खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हैं, वो खुदावंद का दीदार हासिल करते हैं, और खुदावंद की हुजूरी में वो शादमानी हासिल करते हैं। अजीजों याद रखिए, आज भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। लोग खुदावंद के घर में होते हैं, गीत भी गाए जा रहे हैं, हदिये भी दिए जा रहे हैं, खुशी भी दिखाई जा रही है, लेकिन खुदावंद आया और कब आया नोबडी नोज, किसी को अंदाजा ही नहीं है। लेकिन वो जो खुदावंद के साथ गहरे रिश्ते में होते हैं, अरे उन पे ये भेद खुल जाता है कि जीसस इज हियर। अरे यीशु मसीह आ गया है, खुदावंद की हुजूरी आ गई है। अरे वो खुदावंद का दीदार हासिल करते, इत्मीनान पाते, और खुदावंद से बरकतों को हासिल करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें और अपने आप को परखें, जाने और जांचें कि मैं कहां पर खड़ा हूं। क्या मैं खुदावंद के काम करने के अंदाज से वाकिफ हूं? अरे मैं कैसा मसीही हूं? आइए मिलिए शमाउल से, इसके कतार पर गौर कीजिए और अपने आप को और ज्यादा मसीह में बेहतर और मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। जिंदा अजीम आसमानी बाप, यीशु जी दिल की
गहराइयों से खुदावन हम शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए, इस कलाम के लिए जो आपने हमें अता किया। खुदा मेहनत करते अपने कलाम के वसीला से अपने बच्चों को, तमाम जानों को, सुनने वालों को बड़ी बरकत दीजिए, दिलों की आंखों को रोशन कीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए। खुदावन ईमान की मजबूती, कुव्वत और जोर में अपने बच्चों को रोज बरोज आप पे व्यवस्था होने का फजल बख्शिए, छुइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। God bless you। खुदा अपने कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत इनायत फरमाए। God bless you all।